Hello students, in this class we are going to discuss about the hydrodynamics bearing design. So first of all, we will see what is bearings and what are various classification of bearings. So let's see what is bearing. So bearing is a mechanical component, or you can say a mechanical element that can join two parts. One is moving and one is stationary, or you can say if we want some relative motion between two parts without friction, or you can say less amount of friction, then we use bearing. So these two parts will have relative motion, and this motion will also support some load that may be radial or axial. So the different types of bearing is required. So we have a lot of bearings in the market. Let's see what are their classification. So here we can see uh, bearings are classified as per nature of contact and direction of load applied. So based on the nature of contact, we can see roller contact bearing and sliding contact bearing. So generally, in our bicycle or motorcycle or in the ceiling fans or various fan, we use rolling contact bearing. Generally, the deep groove ball bearings are used, which is able to support the radial as well as axial load. And the sliding contact bearing are generally used in electric motors for heavy load carrying capacity. और डायरेक्शन के आधार पे भी यहाँ बांटा गया है, लाइक रेडियल, थ्रस्ट एंड कोनिकल। जैसे कि आप एक ट्रक की बात करें, ट्रक में जो व्हील होता है उसमें हमें टर्निंग भी होती है, उसमें लोड भी लगती है। तो जो टायर मतलब ट्रक का पहिया होता है वो एक रेडियल लोड भी लेने के लिए सक्षम होना चाहिए और एक्सियल लोड के लिए। सो बोथ load carrying capacity should be there. So these types of bearing are, you can say, called as the taper bearing, which is a property of a radial bearing as well as thrust bearing. So other bearing are rolling contact bearing. So basically in this we have ball bearing, cylindrical roller bearing, taper roller bearing and needle bearing. So all bearings have their specific applications. For sliding contact bearing में generally we have seen two types of bearing, hydrostatic and the hydrodynamics. Hydrostatic में क्या होता है कि we have to use some external pump to generate the pressure that can carry the load. And in hydrodynamics bearings, the word dynamic itself explains that the working of the bearing depends on how it runs. Means whenever this there is a running shaft inside, you can say bearing, and there is some liquid, you can say lubricants, then there will be a hydrodynamic action. Then we will get some, you can say, load carrying capacity. तो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग क्या है? दो टाइप को बांटा गया इसमें, प्लेन स्लाइडर बेयरिंग एंड जनरल बेयरिंग्स। यहाँ पे एक जनरल बेयरिंग का एग्जांपल आपको दिखाया गया है, एप्लीकेशन फिगर दिखाई गई है एंड द डिफरेंस इज नोटेड बिलो हियर। सो यू कैन सी द शाफ्ट व्हिच इज द इनसाइड द बेयरिंग। ये जो हॉसिंग है वो आपका बेयरिंग हो गया और अंदर में जो है आपको जनरल या शाफ्ट हो गया। और दोनों के बीच में क्या होता है कि आपका सम लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है, और वो लुब्रिकेंट की भी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से, बिकॉज द लोड कैरिंग कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट वी यूज्ड, and there are a lot of other parameters we have to discuss about when we consider the designing of this general bearing. यहाँ पे आपने देखा है कि ऑयल इनलेट भी दिया गया है, ऑयल इनलेट दिया गया है यहाँ पे इन शाफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक ये साइड व्यू है जनरल बेयरिंग का, और राइट साइड में जो फिगर दिया है उसमें ज्योमेट्री को एक्सटेंडेड वर्जन में बनाया गया है। हालांकि आपका जो जनरल होता है या यू कैन से शाफ्ट या फिर बेयरिंग होती है, उसका जो डायमीटर है वो बहुत ही कंपेरेबल होता है। शाफ्ट का जो डायमेंशन होता है वो बेयरिंग से छोटा ही, बहुत ही कम होता है, मतलब दे आर कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, सॉरी। So these are the basic equation we used here,
And these are the result we can get from standard books. And these are some graphs I have taken this from my MTech work, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे लेंथ टू डायमीटर रेशियो हम चेंज करते हैं तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर जो प्रेशर जनरेशन है वो किस प्रकार से मिलता है। जैसे कि जो अपर डायग्राम है, ऊपर के डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है अलोंग द लेंथ, जो लेंथ के अलोंग में, क्योंकि वो लंबा है, मतलब यहाँ पे क्या है, एल बाई डी रेशियो इज़ वेरी हाई, तो एल बाई डी रेशियो मतलब लेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायमीटर, तो उसमें आपकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो अलोंग द लेंथ लगभग बराबर मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर लेंथ छोटा है डायमीटर की तुलना में, लेंथ अगर कंपेरेबल है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एंड्स में लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है और सेंटर में मैक्सिमम है। तो लॉन्ग बेयरिंग में ज़्यादा कंसिस्टेंट आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ी कम मिलती है। ये तो हो गया इसका एक सिमुलेटेड रिजल्ट, बट इन एक्चुअल लाइफ व्हेन वी यूज द लॉन्ग बेयरिंग, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिल्ड द लॉन्ग बेयरिंग एक्यूरेटली, बिकॉज उसमें वॉबलिंग की प्रॉब्लम आती है और भी कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि लॉन्ग बेयरिंग को अलाइन करके चलाना भी एक, चलने में भी अगर वेट टियर हो जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी चलने में, जबकि शॉर्ट बेयरिंग में अलाइनमेंट कंपेरेटिवली ईजी है। ठीक है, आज की क्लास में इतनी रखते हैं। विल सी इन अनदर क्लास। थैंक यू।